I'm with Hamid Mir, one of Pakistan's best-known commentators and astute political observer. He has a show on Pakistan TV channel Geo News. It's called Capital Talk. And today we are discussing the Pakistan Supreme Court's historic 5-0 verdict, which basically said that the Imran Khan government's attempt to prorogue the National Assembly last Sunday was unconstitutional. The Pakistan media has come out fully behind this verdict. There's lots of very interesting headlines in the Pakistani media. But first of all, to you, Hamid Mir, congratulations for this big day. And welcome to the print. And tell me, what is the significance of this verdict of the Pakistan Supreme Court? This verdict is important because it was the first time in the history of Pakistan that civilian prime minister, an elected prime minister, he broke his own assembly, and he tried to invoke some articles of the constitutions which were never used before, like Article 5. And the Speaker of the National Assembly, he rejected the no confidence motion on the basis of Article 5. And Article 5 is entirely a different thing. It is about the loyalty to the state. It had nothing to do with the no confidence motion. And after a few minutes, you see, the whole operation was done in just 15 minutes. That the law minister, he made a speech on a point of order, and then the speaker of and then the Speaker of the National Assembly, he rejected the no confidence motion, and within few minutes, the Prime Minister of Pakistan, he was sitting in his office in front of the television camera, and he announced the dissolution of the National Assembly. So this whole operation from National Assembly to the Prime Minister office, it took just 15 minutes. And the whole country was in a shock that what happened, because in the past we saw that these kind of things were done by the military dictators, not by the civilian prime minister. So that's why these last 5-6 days were very intense, very shocking for the whole nation. Everybody wanted to know what will happen next. So finally, the Supreme Court of Pakistan, after the hearing of 3 days, they not only restored the National Assembly, but they asked the government that they should not create any hurdle in the no confidence process, and the no confidence process will be completed tomorrow. तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि this civilian prime ministers were not supposed to have done this. पहले के ज़माने में military dictators करते थे ये सारा कुछ. So the captain of Pakistan, Imran Khan, उसने तो गुगली मार दी फिर पूरे देश के ऊपर. No, actually, Imran Khan was a fast bowler. He was not a leg spinner, and he tried to bowl a googly. बट जब फास्ट बॉलर जो है वो गुगली मारने की कोशिश करेगा तो गेंद तो फिर विकेटों में नहीं ना जाएगी. लेकिन एक्चुअली ज्योति, इसमें इशू ये है कि इमरान खान जो है वो क्रिकेटर तो है, ठीक है, वो बहुत अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन ये पॉलिटिक्स थी, ये नेशनल असेंबली थी, ये क्रिकेट की ग्राउंड नहीं थी. और यहाँ पर फास्ट बॉलर जब गुगली मारने की कोशिश करेगा तो जो सामने बैट्समैन है, यानी कि ऑपोजिशन जो है, उसने छिक्का मार दिया, और मैच जो है वो जब आखिरी ओवर में पहुंचा और ऑपोजिशन जो है उसको लास्ट बॉल पर सिर्फ एक सिंगल स्कोर करना था, और इमरान खान जो है वो उसकी गेंदें सही नहीं पड़ रही थी, तो उसने कहा अब तो मैं हारने वाला हूं. तो उसने क्या किया, उसने विकेटें उखाड़ी और ग्राउंड से भाग गया. तो एम्पायर जो थे वो देखते रह गए, उसका मुंह देखते रह गए, क्या हुआ, ये तो विकेटें उखाड़ के भाग गया. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस एक गुगली बॉलर को वापस पकड़ के ग्राउंड में लेके आए हैं और उसे कहा कि अब अपनी आखिरी गेंद करो और सामने ऑपोजिशन जो है उसको खेलने का मौका दो और जस्ट फिनिश द मैच ऑफ द नो कॉन्फिडेंस. तो बेसिकली जो है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, तो फिर वो तो इमरान खान एक तरह से तो ही हैज बीन क्लीन बोल्ड, इजंट इट? नॉट क्लीन बोल्ड येट, बिकॉज ये भी पहली दफा हमारे कंट्री की हिस्ट्री में हुआ है कि एक आदमी जिसने अपनी गवर्नमेंट को खुद डिसॉल्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तूने काम ये गलत किया है भाई, तुझे अपनी गवर्नमेंट नहीं डिसॉल्व करनी थी, तो उसको रिस्टोर कर दिया है. ये अजीब पार्टी है पीटीआई वाले कि इन्होंने जब अपनी गवर्नमेंट को खुद ही डिसॉल्व किया, असेंबलियां डिसॉल्व की, तो ये नाचने लगे, भंगड़े डालने लगे कि ओ जी असी जित गए.
और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गवर्नमेंट को रिस्टोर किया तो ये रो रहे हैं। फवाद चौधरी कह रहा है जी हमारी तो किस्मत ही खराब निकली, हम तो 1947 से पिछले टाइम में वापस चले गए हैं। अब ये देखें ना, ये बड़े अजीबोगरीब लोग हैं। तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मैच जो है वो अपने लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे पहुंचा हुआ था, आपने सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग करवानी थी, अब आप सिर्फ वोटिंग करवा लीजिए एंड देन मैच इज ओवर। हमें नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वी आर नॉट कंसर्न, लेकिन मैच जो है इसको इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होना चाहिए। अच्छा हामिद, ये पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत ही सुना है कि, और इमरान खान साहब ने भी बहुत अपने जो देश के सामने, मुल्क के सामने एड्रेस टू द नेशन 3-4 दफा उन्होंने किया इन द लास्ट 1 वीक और 10 डेज। उसमें बार बार ये उन्होंने कहा है कि एक देयर वाज अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और फिर अमेरिका का नाम तक लिया ही। इनफैक्ट ही यूज्ड डोनाल्ड लू, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है साउथ एशिया के स्टेट डिपार्टमेंट में, उनका नाम तक लेके उन्होंने कहा कि देयर वाज अ फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, और उसमें ये था कि पीटीआई सरकार को हटा देना पड़ेगा। So, but journalists like you have said that there was absolutely no foreign conspiracy at all. So, what is the truth? What is the truth? His response is very simple. I can respond back with a few dates. देखिए मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूँ। पहली तारीख है जी 26 सितंबर 2020, 26 सितंबर 2020। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें उसने पीएमएलएन को, जेयूआई को, एएनपी को, सब पार्टीज को इकट्ठा किया और कहा कि इमरान खान जो है ये इसकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, तो हमें एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना चाहिए। और उसमें ये फैसला होता है कि हम इसके खिलाफ एक मैस एजिटेशन मूवमेंट चलाएंगे। तो 9 दिसंबर 2020 को इमरान खान जो है वो ऑन रिकॉर्ड कहता है कि आप मेरे खिलाफ सड़कों पे क्यों आ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, असेंबली में आओ, मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लेके आओ। तो लेकिन पीपल्स पार्टी तो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहती थी, नवाज शरीफ साहब नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाह रहे थे। तो इस नो कॉन्फिडेंस के इशू पे ये दोनों जो पार्टियां हैं, इनका जो अलायंस है ये टूट गया, जिसका नाम था पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। उसकी वजह से काफी दिनों तक इनका जो अलायंस है वो टूट गया और पीपल्स पार्टी का एक रास्ता हो गया और नवाज शरीफ का दूसरा रास्ता हो गया। फिर जब इनको तकरीबन अक्टूबर नवंबर 2021 में ऑपोजिशन पार्टीज को पता चलना शुरू हुआ कि इमरान खान जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाना चाह रहा है पाकिस्तान में वोटिंग के लिए, और कुछ उसका मंसूबा ऐसा है, डील वो नेशनल असेंबली की सीट्स कम करेगा और रिगिंग के जरिए 2/3 मेजोरिटी लेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए वो पूरे का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करेगा और पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिप्लेस करेगा विद द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जब ये बात इनको पता चली तो इस पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है लेड बाय आसिफ अली जरदारी, ये बड़े टची हैं, इसलिए कि ये समझते हैं कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमारी पार्टी ने बनाया था और इसके अलावा ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इनका ख्याल है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से जो है वो पहले जो ईस्ट पाकिस्तान का फॉल भी हो गया था, तो ये उसके बहुत खिलाफ। तो इन्होंने फिर जरदारी साहब ने नवाज शरीफ से बात की, फजलुर रहमान से बात की एंड फाइनली नवाज शरीफ एग्रीड फॉर द नो कॉन्फिडेंस और फिर उस पर इनकी बातचीत शुरू हो गई और इन्होंने किया ये कि ये जो भी कर रहे थे ये बिल्कुल क्वाइटली और सीक्रेटली कर रहे थे और मीडिया को बिल्कुल नहीं बता रहे थे। मीडिया जो है वो ज्यादातर जो हमारे बड़े बड़े वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो यही कह रहे थे कि ये ऑपोजिशन जो है तो अंदर से एक दूसरे के खिलाफ है, ये नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते। तो इमरान खान जो है ना वो ज्यादातर अपनी पॉलिटिक्स और डिसीजन मेकिंग करता है टीवी स्क्रीन देख के। टीवी स्क्रीन उसको डिसीव कर रही थी, टीवी स्क्रीन उसको ये बता रही थी कि ऑपोजिशन जो है इसमें यूनिटी नहीं है और ये नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते। और दूसरी बात ये हुई कि जनवरी 2022 में एक मीटिंग, क्योंकि जनवरी 2022 में आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले मेरे पे बैन था, तो मेरे पास और कोई काम नहीं था, बस मैं ये ऑपोजिशन की जो मुख्तलिफ मीटिंग होती थी उधर जाके उनको ही सूंघता रहता था, उनके साथ जाके बैठा रहता था। तो वो भी जो है वो मुझसे कोई चीज छुपाते नहीं थे, उनको पता था इसमें तो बैन है, ये क्या कर लेगा, ये कहाँ जाके बताएगा। तो वो मुझे आज
आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि ये तो इमरान खान की पार्टी के अंदर रिवोल्ट हो चुका है, इसके तो 20-22 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली ये तो इसको छोड़ने वाले हैं, और इसके जो एलाइज हैं ये भी इनको छोड़ने वाले हैं। तो मैंने जब हल्का फुल्का इधर उधर वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल में जिक्र कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस आने वाली है, ये हुआ, तो ये सारे जो है इन्होंने मुझे तमाम सीनियर लीडर्स ने कमरे में बंद करके मेरी बैशिंग की, खबरदार वी विल नॉट टॉक टू यू इन द इमरान खान। मैंने कहा भाई मैंने तो एक कॉलम लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, आई एम जर्नलिस्ट, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा फिर ठीक है तुम जर्नलिस्ट हो तो फर्क, हम वी डोंट ट्रस्ट जर्नलिस्ट। हाँ वैसे तुमने एक दोस्त की हैसियत से आगे बैठना है तो क्वाइटली बस बैठे रहा करो। तो मैं फिर चुप कर गया, और पंजाबी में कहते हैं मैंने अब मुंह को ताला लगा लिया। अब वो जब टीवी स्क्रीन थी वो इसको डिसीव कर रही थी, ये पीछे बैकग्राउंड में आसिफ जरदारी साहब ने इसके जो 3-4 मेन अलाइज पार्टीज हैं, मसलन MQM जो है उसके 7 वोट थे, उसको तोड़ लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसके 4 वोट थे, उसको तोड़ लिया। शाहजैन बुगटी जो है अकबर बुगटी साहब का ग्रैंडसन, तो इमरान खान का जो डिफरेंस था ऑपोजिशन के साथ सिर्फ वो 8-10 वोटों का था, वो इन्होंने बड़ी आसानी से जब पूरा कर लिया। तो पूरा करने के बाद इन्होंने मार्च के शुरू में आके अनाउंसमेंट किया कि अब हम नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। तो इमरान खान जो है उसका जो इनिशियल रिएक्शन था वो ये था, ओ मैं तो दुआ कर रहा था कि तुम नो कॉन्फिडेंस लेके आओ, तो मैं तो अब शुक्र करता हूं कि नो कॉन्फिडेंस आई, अब मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ूंगा। और फिर इसने जरदारी को कहा, जरदारी तू मेरा टारगेट नंबर 1 है, तू मैं बंदूक की मेरी निशस्त पे आ गया, ये वो कर करा के। तो इसका ख्याल था कि ये तो ऐसे ही हवाई फायर कर रहे हैं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता उसके बंदे टूटने शुरू हुए और फिर हमने वो स्टोरी ब्रेक की कि इस्लामाबाद के सिंध हाउस में PTI के जो रेबेल्स थे 15-20 वहां पे छुपे हुए थे। जब वो स्टोरी ब्रेक हुई तो फिर कहो इमरान खान ने कहा अच्छा तो मेरे खिलाफ तो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हो गई है, और फिर इसने वो लेटर निकाल लिया एक, फिर उन्होंने लेटर बनाया और कहा कि जी ये तो डोनाल्ड लू जो है उसने धमकी दी थी 7 मार्च को कि नो कॉन्फिडेंस अगर कामयाब नहीं होगी तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और 8 मार्च को अनाउंसमेंट हो गई। तो ये तो जो कहानी है ना नो कॉन्फिडेंस की, ये शुरू हुई थी 2 साल पहले 2020 में, और ये चैलेंज खुद इमरान खान ने किया। इमरान खान ने 9 दिसंबर 2020 वाले दिन कहा कि लाओ अगर तुम्हें हिम्मत है नो कॉन्फिडेंस लेके आओ। तो वो लाने की बजाय वो आपस में लड़ पड़े ऑपोजिशन वाले, उसकी वजह से टाइम मिल गया इसको। फिर जब वो इकट्ठे हो गए और वो नो कॉन्फिडेंस ले आए तो अब इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, तो इसने पहले तो उसको डिले किया। 8 मार्च को ऑपोजिशन ने नेशनल असेंबली में वो सबमिट करा दी नो कॉन्फिडेंस की मोशन विद द सिग्नेचर्स ऑफ मोर देन 160 MPs। अब ये उसको लेके बैठे रहे। फिर इन्होंने जनाब का 28 मार्च को हम इस पे डिबेट कराएंगे। 28 मार्च को डिबेट नहीं कराई, कहा कि अब 3 अप्रैल को वोटिंग कराएंगे। जब इसको पता चल गया कि अब मैं उसको सरवाइव नहीं कर सकता, तो इन्होंने 3 अप्रैल वाले दिन जो है वो नो कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट करवा के और असेंबलियां तोड़ दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अंडू कर दिया सारे मामले को। तो अब कल का दिन है इमरान खान ये बताइए इसका मतलब ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की बात है तो इसमें असलियत क्या है कि कोई थी नहीं फॉरेन कॉन्स्पिरेसी? कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। अब मसला ये है ना कि हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज है ना वो इतनी कमरे बंद करके और इतनी ज्यादा वो प्लानिंग कर रहे थे, वो टीवी तो देखते ही नहीं थे। अब उनको ये भी नहीं पता था कि इमरान खान क्या बोल रहा है, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की थ्योरियां बयान कर रहा है, वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे। अब देखिए मैं सिंपल सी बात है, मैंने पहले आपको डेट्स बताई, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कहता है कि 7 मार्च को एक डिप्लोमेटिक केबल के जरिए हमें थ्रेट मिला और 8 मार्च को ऑपोजिशन ने नो कॉन्फिडेंस जो है वो सबमिट करा दी नेशनल असेंबली में। तो अगर 8 मार्च को आपको पता चल गया था कि फॉरेन कॉन्स्पिरेसी अमेरिका कर रहा है, तो फिर 21 और 22 मार्च को इस्लामाबाद में OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। OIC मींस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज। वो OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का क्या काम था, उसको क्यों बुलाया इमरान खान साहब आपने? वो औरत आई यहाँ पे, वो बीबी आई, उसने 2 दिन मीटिंग की, शाह महमूद कुरैशी साहब उसके साथ तस्वीरें खिंचवा के वो ट्वीट करते रहे, उनको खुश आमदेद कहते रहे, वेलकम करते रहे, डिनर खिलाते रहे। और फिर 23 मार्च को जब वो सारे चले गए यहाँ से, फॉरेन मिनिस्टर भी चले गए, वो भी चले गए, और 24 मार्च को जब ऑपोजिशन ने
अपने कार्ड शो करने शुरू किए और उन्होंने कहा ये ले इमरान खान, ये तुम्हारे एमक्यूएम थी, तुम्हारी ये लाई, इसके 7 वोट थे, ये हमारे साथ आ गए। ये लो, ये बीएपी थी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, इसके 4 वोट थे, ये हमारे साथ आ गई। ये लो, तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर शाहजेन बुगटी तुम्हारे साथ था, ये हमारे साथ आ गया। वो जो 1-2 दिन में उन्होंने ठक 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 करके अपने कार्ड शो किए, तो इमरान खान को एकदम से फॉरेन कॉन्स्पिरेसी याद आ गई और फिर उसने 27 मार्च को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसा किया और जेब से इस तरह निकाला लेटर और कहा कि ये देखो, ये लेटर है और ये एक फॉरेन कंट्री ने लेटर भेजा है और थ्रेट किया था मुझे। तो वो जिस कंट्री की तरफ ये सिग्नल कर रहे थे, ये बिल्कुल झूठ है, ये फ्रॉड है। फिर ये हुआ कि इन्होंने कोशिश की खान साहब ने कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स को साथ में बिठा के तो एक स्टेटमेंट जारी किया कि ये जो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का मेरा नैरेटिव है वो उन्होंने इसको एंडोर्स कर दिया और अब हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। वो इसको ओन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, प्लीज हमें न्यूट्रल रहना दें। तो इमरान खान साहब ने ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट के आर्मी को दोबारा घसीटे, पॉलिटिक्स में दोबारा घसीटे। ये देखिए ना, ये एक हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत अरसे के बाद ये एक टाइम आया था कि फौज कह रही है कि हम पॉलिटिक्स से दूर रहना चाह रहे हैं, हमें इसमें ना घसीटो, हम कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। इमरान खान कह रहा है नहीं, न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है, तुम न्यूट्रल क्यों हो गए? और फिर कह रहा है ये राइट और रॉन्ग, हक और बातिल की लड़ाई बना दी, राइट और रॉन्ग की लड़ाई बना दी, कि इसमें तो तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वो जो है वो क्वाइटली आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ जाके क्वाइटली इनको मिल रहे हैं कि सर प्लीज हमें ना आप इसमें इन्वॉल्व करें। तो फिर जब ऑपोजिशन को ये पता चला तो ऑपोजिशन ने शोर डालना शुरू किया कि ये इमरान खान ने मिलिट्री लीडरशिप को बुलाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में और उनको कहा कि आप जाके ऑपोजिशन से कहें कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले लें, तो मैं उसके बाद असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा और फ्रेश इलेक्शन पे वो भी राजी हो जाए, मैं भी राजी हो जाऊंगा। तो ऑपोजिशन ने कहा कि हमने एक पोजीशन ली हुई है और हम इसको वापस नहीं ले सकते। और ऑपोजिशन ने मिलिट्री लीडरशिप को यह भी कहा कि हमारा ख्याल है कि आप न्यूट्रल हैं, तो आप न्यूट्रल ही रहें। तो उन्होंने कहा कि हम न्यूट्रल हैं, हम सिर्फ वी आर जस्ट मैसेंजर्स, वी आर नॉट अ पार्टी। ये आप जाने और प्राइम मिनिस्टर जाने, हम इसमें हम सिर्फ मैसेज देने आए हैं। तो ऑपोजिशन ने कहा ठीक है, फिर जाके मैसेज दे दो उसको कि हमने नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लेनी और हमने जो भी किया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो वो वापस गए, उन्होंने जाके प्राइम मिनिस्टर को बता दिया कि ये हुआ। तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने 28 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन का डिबेट शुरू करवाई, लेकिन खुद नहीं आए और फिर जो मीटिंग थी उसको 3 अप्रैल तक डिले करवाया। और जिस दिन ये 3 अप्रैल का दिन आया तो उस दिन हाउस में ऑपोजिशन की मेजोरिटी जब उन पर नजर आ गई तो फिर उन्होंने ये ड्रामा किया, नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिजेक्ट करके असेंबलियां डिसॉल्व कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ अनडू कर दिया और अब इमरान खान साहब के पास एक ही रास्ता है ऑनरेबल एग्जिट का कि इंस्टेड ऑफ फेसिंग द नो कॉन्फिडेंस टुमारो इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, आज शाम को होने चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें, अच्छा कर दें। जी हामिद, एक दो सवाल मेरे और हैं। 2 दिन पहले फवाद चौधरी जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, उनको मैंने यही सवाल पूछा था कि जब आपकी फौज जो है उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी डिक्लेयर कर दी थी तो आप क्यों इतने खफा हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पाकिस्तान फौज एंड वी आर ऑन द सेम पेज, और जब हम आए भी थे तब भी हम एक मिडिल क्लास पार्टी हैं और हमको फौज ने तब भी सपोर्ट किया था। तो आज की तारीख में तो फिर ये हैंड्स ऑफ अप्रोच कैसे ले रही है फौज? देखिए ना, इसमें मसला ये था कि आपने देखा होगा कि जब पीडीएम बना था सितंबर 2020 में, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब लंदन से जब पीडीएम की मीटिंग्स को एड्रेस करते थे तो वो बार बार नाम लेते थे आर्मी चीफ का, उस वक्त जो डीजीआईएसआई थे उनका नाम लेते थे। फिर एक जो गुजरांवाला में जलसा हुआ था, फौज के खिलाफ बड़े नारे लगे, उस पर फौज के अंदर ये एक थिंकिंग शुरू हुई, एक फीलिंग आई कि ये इनकी आपस की लड़ाई है पॉलिटिशियंस की, तो हमें बीच में क्यों लाया जा रहा है। तो उन्होंने फिर ये फैसला किया कि हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये इन मामलात से हमें दूर होना चाहिए, परहेज करना चाहिए, सिक्योरिटी के मामलात पे तवज्जो देनी चाहिए। और उस वक्त आपको पता है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल भी ठीक नहीं थी और जो बॉर्डर एरियाज है अफगानिस्तान के साथ, वहां पे भी प्रॉब्लम आ रही थी, कैजुअलिटीज बहुत हो रही थी आर्मी की। तो उस सिचुएशन में फौज ने आहिस्ता आहिस्ता फैसला किया कि हमें बिल्कुल भी इनकी जो लड़ाई है इसमें नहीं आना चाहिए।
तो वैसे तो इमरान खान जो है वो हमेशा से, जब वो ऑपोजिशन में थे तो यही कहते थे कि फौज को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हमने देखा कि उन्होंने बाकायदा इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसा कि अभी पिछले 8-10 दिन में भी इन्होंने फौज को बाकायदा बुला के कहा कि जाओ ऑपोजिशन को कहो कि नो कॉन्फिडेंस वापस ले। तो ये फौज ने जो फैसला किया कि हमने पॉलिटिक्स में नहीं आना, उसकी वजह ये थी कि वो चाहते हैं कि हम इस तरह की जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं उसमें ना पड़े। जाहिर बात है फिर उसमें ये होता है कि इमरान खान साहब जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मीडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं, और मीडिया में भी बहुत से लोग थे, उन्होंने भी इस पे बड़ी तनकीद की। जब कुछ जर्नलिस्ट हैं, जब उनको फैंटी लगी, मारा पीटा गया, तो उस पे बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मैंने भी प्रोटेस्ट किया, बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सिविल सोसाइटी जो है वो बड़ी, तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ा एक नेचुरल एक रिएक्शन आ रहा था कि और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सुपरमेसी पे जो लोग यकीन रखते हैं उन सब का ये डिमांड था कि आर्मी जो है वो अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर रखे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 244 जो है उसके तहत जो ओथ लेता है हर फौजी अफसर और फौजी जवान, वो ओथ लेता है कि मैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। तो हम यही मुतालबा 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट ना करे और पॉलिटिक्स से दूर रहे। तो जब फौज ने एक अच्छा फैसला किया कि ठीक है हम इससे दूर रहेंगे, तो इमरान खान ने कहा नहीं तुम फिर आओ पॉलिटिक्स में, फिर आओ। तो ये बैकग्राउंड थी फौज की पॉलिटिक्स से परहेज करने की। जैसे अभी आपने कहा कि इमरान खान को चाहिए कि वो आज ही अपना इस्तीफा दे दे, ताकि कल जब नेशनल असेंबली में सैटरडे को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ेगा, तो ही विल बी मोस्ट लाइकली वोटेड आउट इन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। इसके बाद क्या होने वाला है कि ऑपोजिशन में से कोई जो है उनका कोई लीडर चुन के आएगा, वो नया प्रधानमंत्री बनेगा, अब क्या होगा? देखिए, ये ऑपोजिशन ने अपनी तमाम स्ट्रेटजी, तमाम फैसले जनवरी 2022 में कर लिए थे। जनवरी 2022 में फैसला हो गया था कि शहबाज शरीफ विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उसमें एक तब्दीली, एक सिर्फ चेंज उसमें ये आया कि शुरू में फैसला ये था कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर परवेज लाई होगा, क्योंकि परवेज लाई वाज द एलाई ऑफ इमरान खान। तो इमरान खान जो है वो पहले उसको क्या करते थे कि ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, फिर उस डाकू को अपना एलाई बना लिया, और उन पर और उनके बेटे मुनस लाई पर और सेनेटर चौधरी शुजात हुसैन पे फिर इमरान खान ने बहुत से केसेस बनाए। वो इमरान खान उसको ब्लैकमेल करता था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जरिए। तो वो चौधरी ब्रदर्स वर वेरी एंग्री विद इमरान खान, तो वो जरदारी साहब के पास आ गए। तो उन्होंने कहा जरदारी साहब आप हमें भी अपने साथ मिला ले। जरदारी साहब ने उन पर ट्रस्ट कर लिया, बेचारा सिंधी बलोच, उसने पंजाब के इस जाट पे ट्रस्ट कर लिया। तो जाट साहब जो है उन्होंने इनके साथ मीटिंग शुरू कर दी, एंड फाइनली आसिफ जरदारी जो है उसने लड़ाई लड़ी परवेज लाई की विद नवाज शरीफ के ये चीफ मिनिस्टर होगा पंजाब का, तो फिर मैं आपके साथ मिलकर नो कॉन्फिडेंस को कामयाब बनाऊंगा। तो नवाज शरीफ साहब ने दिल पे पत्थर रखा और कहा अच्छा जरदारी साहब ठीक है। तो अब जरदारी साहब के साथ एक रात पहले चौधरी परवेज लाई जो है वो फूलों का गुलदस्ता लेके गए, उनका शुक्रिया अदा किया, और सुबह सुबह इमरान खान के पास पहुंच गए और क्वाइटली जाके तो उसके साथ सौदेबाजी कर ली, और इमरान खान ने उसको अपना चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया पंजाब में। तो ये एक ऑपोजिशन के साथ हैंड किया इमरान खान ने, और लेकिन अब उसकी देखे ना उसका फायदा क्या हुआ, बजाय के नुकसान होता ऑपोजिशन को, फायदा ये हो गया कि पहले जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है PMLN, वो उसके पास मोर देन 150 सीट्स थी पंजाब असेंबली में, लेकिन वो परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर बना रहे थे जिसके पास सिर्फ 10 सीटें थी पंजाब असेंबली, सिर्फ 10 सीटों वाला चीफ मिनिस्टर बन रहा था ब्लैकमेलिंग के जरिए। लेकिन वो जब 10 सीटों वाला परवेज लाई जो है उसको इमरान खान साहब ने गले लगा लिया, तो ऑपोजिशन की तो मौज हो गई। और अब ऑपोजिशन का जो वहां पे पंजाब में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है वो हमजा शहबाज है, द यंगर सन ऑफ शहबाज शरीफ। तो अब ऊपर जो है शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, नीचे उनका पुत्र जो है वो चीफ मिनिस्टर होगा। तो ऑपोजिशन को नुकसान की बजाय फायदा हो गया। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो जो क्वेश्चन है आपका कि आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले दिनों में अब ये होगा कि ये जब नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगी और एक नई कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी, तो इन्होंने कुछ करानी है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इन्होंने कुछ लेजिस्लेशन करनी है कि ये जो पाकिस्तान की हर इलेक्शन में
रिगिंग की एलिगेशन लगती है, और ये इमरान खान साहब जिन्हें एक रिगिंग का ग्रैंड प्लान बनाया हुआ था, 2/3 मेजोरिटी के जरिए इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना था, तो इसको रोकने के लिए और इसको एक परमानेंट फीचर बनाने के लिए ये कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करेंगे, और उसके बाद फिर ये एट द एंड ऑफ दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक ये नए इलेक्शन करवाएंगे। और इमरान खान साहब जो है, मुझे लगता ये है कि इमरान खान साहब के साथ अब अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी नफरत भर दी है, इतनी नफरत भर दी है कि अब फर्ज करें, जो मुझे पता चल रहा है कि राना सनाउल्लाह जो है वो होम मिनिस्टर बनने वाला है, इंटीरियर मिनिस्टर बनने वाला है। अब राना सनाउल्लाह कौन है? उस बेचारे पे इमरान खान ने ड्रग्स का जाली केस बनाया। वो अपनी गाड़ी में जा रहा था, उसको एक चेक पोस्ट पे एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने रोका और अपने थैले में से ड्रग्स निकाल के उसकी गाड़ी में रख दी और कहा, राणा साहब यू आर अंडर अरेस्ट। वो उसको जब पुलिस स्टेशन ने पूछा, आपने मेरे हस्बैंड को किस केस में गिरफ्तार किया? तो उन्होंने कहा, जी इनसे हीरोइन निकली है। तो उन्होंने कहा, कौन, केड़ी हीरोइन, इंडियन है या पाकिस्तानी? तो ना की है। वो बेचारी इतनी सिंपल थी औरत। और बाद में मैं जब उनको मिला, मिसेस राना सनाउल्लाह को, तो वो जो है जिस तरह की रानों की जिस तरह की औरतें होती हैं उसने ऐसी ऐसी सुनाई इमरान खान को। तो मुझे तो लगता है कि इमरान खान जब अपोजिशन में आएगा तो राना सनाउल्लाह की बीवी जो है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा था। हाँ, इमरान खान ने अगर कोई करप्शन किया है और उनकी वाइफ पर अगर कोई एलिगेशन हैं, तो इमरान खान को चाहिए कि उसको फेस करे। अगर शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत में शहबाज शरीफ को 2 दफा अरेस्ट किया गया, ऑपोजिशन लीडर को 2 दफा अरेस्ट किया गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी को 2 दफा अरेस्ट किया गया, एहसन इकबाल फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर उसको भी अरेस्ट किया गया, ख्वाजा आसिफ फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर उसको भी अरेस्ट किया गया। इतनी अपोजिशन को इतना विक्टिमाइज किया है कि अब ये जो अपोजिशन है, मुझे लगता ये है कि ये अगर रिफॉर्म्स की तरफ जाएं तो बेहतर है, लेकिन ये चाहे ना चाहे इन पे इतना प्रेशर है अपने इंटरनल रैंक से कि ये इमरान खान को एक दफा सबक जरूर सिखाना है। ये कभी जेल नहीं गया, इसको जरा जेल के मच्छर जो हैं उनसे इसकी मुलाकात जरूर करवाएं। मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला जो 4-5 महीने हैं इसमें इमरान खान के काफी टफ होंगे। आखिरी सवाल आपको हामिद, नवाज शरीफ साहब का क्या होगा? पिछले 4 सालों से वो लंदन में बैठे हुए हैं, ही इज इन एग्जाइल, तो क्या वो पाकिस्तान वापस आ सकेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब को सजा किस बात की मिली? नवाज शरीफ साहब को सजा इस बात की मिली कि उन्होंने कोशिश की कि नेबर्स के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। वो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो हेलीकॉप्टर में बैठ के तो लाहौर उनके घर चले गए, उस पर एक बहुत बड़ा इशू बन गया और फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पाकिस्तान का गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया और प्राइम मिनिस्टरशिप से निकाल दिया गया, पाकिस्तान से बाहर चले गए। और उनकी पूरी फैमिली जो है, उनकी बेटी तक जो है उसने केसेस फेस किए। अब इमरान खान साहब को देखें आप, ये जब उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई 8 मार्च को आई, 8 मार्च से लेके और आज के दिन तक 2 मरतबा उन्होंने मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी को प्रेस किया। 2 मरतबा कह रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को मैं दाद देता हूँ, बड़ी जबरदस्त फॉरेन पॉलिसी है। क्योंकि आजकल मोदी साहब की और इमरान खान साहब दोनों की दोस्ती जो है वो पुतिन से हो गई है। तो अब ये देखें ना, ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लोग ये सवाल उठाते हैं कि अगर नवाज शरीफ जो है वो मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करे तो वो पाकिस्तान का दुश्मन डिक्लेयर हो जाता है। अगर आसिफ जरदारी जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करे तो वो मोदी का यार बन जाता है। लेकिन इमरान खान जो है वो पब्लिक मीटिंग्स में खड़े होकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करे, उसको कोई नहीं पूछता। तो ये है वो डायकोटमी जो खत्म होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका कसूर सिर्फ ये था। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो थोड़ा बैक सीट पे चले गए, शहबाज शरीफ साहब आगे आ गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा मौका ना दें किसी को भी कि उन पर ये इल्ज़ाम लगे कि ये मोदी का यार है। तो आप देखेंगे कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो अगर मोदी साहब को पब्लिकली कहें कि जी इनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है तो उन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगता।
शहबाज शरीफ साहब के लिए जरा ये प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है वो एक कश्मीरी फैमिली से उनका ताल्लुक है। तो ये जो कश्मीरी हो या सिंधी हो या बलोच हो या कोई पठान हो, वो अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करे तो प्रॉब्लम हो जाती है। इमरान खान साहब जो है वो जलंधर का पठान है, लेकिन है पंजाबी, लाहौर में पैदा हुआ है, डोमिसाइल उसका पंजाब का है। तो वो जो मर्जी कह दे इंडिया के बारे में, अच्छी बुरी बात, उसको कोई नहीं पूछता। तो मुझे लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में फिलहाल रहेंगे। नेक्स्ट इलेक्शन में अगर पीएमएलएन को अच्छी मेजोरिटी मिलती है तो फिर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान नहीं आएंगे। अमित मीर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ये रमजान का शुभ महीना है और हम सब यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक नए सिरे से डेमोक्रेसी बहाल हो। आपका जो नो कॉन्फिडेंस का वोट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वोट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। So all the best to you and to your country, and thank you so much for speaking to me at the print. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।